کربلا کی فوج میں موجود یزیدی فوج کے 6 ایسے طاقتور پہلوان جو کہ ایک پہلوان 1,000 فوج کی طاقت رکھتا تھا، لیکن ان 6 پہلوانوں کو صرف ایک نوجوان نے واصل جہنم کیا۔ وہ نوجوان کون تھا جس نے اتنے طاقتور پہلوانوں کو بھی دھول چٹا دی تھی، جن سے مقابلہ کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اتنے طاقتور تھے کہ ہزاروں کے مقابلے میں تنہا لڑتے تھے، لیکن وہ 6 پہلوان جو کہ ہزاروں کے ساتھ بھی تنہا لڑتے تھے، ان سبھی کو ایک تنہا نوجوان نے واصل جہنم کر دیا۔ وہ نوجوان تھا حضرت امام علی علیہ السلام کا پوتا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا بیٹا، کربلا کے نوجوانوں میں سب سے خوبصورت، سب سے شیر دل حضرت علی اکبر۔ اس ویڈیو میں حضرت علی اکبر کی جنگ کا مکمل واقعہ آپ کے ساتھ بیان کروں گا، اور حضرت علی اکبر کے مقابلے میں وہ 6 پہلوان جو کہ ایک پہلوان 1,000 فوج کی طاقت رکھتا تھا، حضرت علی اکبر کے مقابلے میں آئے۔ حضرت علی اکبر نے ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا، میدان جنگ میں کیسے آئے اور شہادت کیسے پائی، یہ پوری تفصیل میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے اہل بیت کو تسلیاں دے کر الوداع کہا اور میدان کی طرف آئے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام 18 سال کے جوان تھے اور چہرہ آفتابی خلق اور خلق میں شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب آپ میدان میں آئے تو ان کے رخساروں کی شمع سے میدان جنگ منور ہو گیا، اور ابن سعد کا لشکر جمال اکبر علیہ السلام دیکھ کر اس قدر حیران ہوا کہ ابن سعد ملعون سے سپاہی پوچھنے لگے کہ اے ظالم، تو ہمیں ایسے خوبصورت جوان کے لیے جنگ کے لیے لایا ہے؟ جب عمر سعد نے دیکھا کہ شہزادہ عقاب کے گھوڑے پر سوار ہے تو کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہے جو شکل و صورت میں شبیہ پیغمبر ہے۔ روایت میں ہے کہ جب اہل مدینہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق غالب آ جاتا تو آپ جناب علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے، اور جب رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کلام کو سننے کا شوق مجبور کرتا تو شہزادہ علی اکبر کا کلام اور گفتگو سنتے۔ اس پاکیزہ شہزادے نے میدان میں گھوڑے کو جولان دی اور پھر یہ رجز پڑھا، میں علی ابن الحسین بن علی ہوں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام بڑی شان سے میدان میں آئے اور مبارزہ طلبی کی، لیکن کوئی بھی لشکر سے باہر نہ نکلا۔ بار بار مبارزہ طلب کرنے کے باوجود کوئی نہ آیا۔ پھر شہزادے نے خود ہی لشکر پر حملہ کر دیا اور میمنا و میسرا اور قلب لشکر کو ایسا درم برہم کر دیا کہ دشمن کے سپاہی آگے سے بھاگ رہے تھے اور الامان الامان کی آوازیں دے رہے تھے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام واپس بابا کے پاس آئے اور عرض کیا، بابا جان، مجھے پیاس نے مار دیا ہے اور لوہے کے ان ہتھیاروں نے مجھے آزردہ کر دیا ہے، کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ اگر ایک گھونٹ مل جائے تو میدان لشکر سے صاف کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میرے قریب آؤ۔ جناب علی اکبر علیہ السلام قریب آئے تو امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کے لبوں اور منہ سے خاک صاف کیا اور حضرت رسول پاک کی انگوٹھی بیٹے کے منہ میں رکھ دی تاکہ چوستے رہیں اور تشنگی سے تسکین مل جائے۔ حضرت علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے اور مبارزت طلب کیا۔ ابن سعد نے طارق بن شبس کو بھیجا کہ جاؤ اور حسین علیہ السلام کے بیٹے کا کام تمام کر دو تاکہ ابن زیاد سے تمہیں رقہ اور موصل کی حکومت لے کر دوں۔ طارق نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں فرزند رسول کو بھی قتل کر دوں اور تو اپنا وعدہ بھی پورا نہ کرے۔ عمر سعد نے قسم کھائی کہ وعدہ وفائی کروں گا
और ये मेरी अंगूठी ले लो और जमानत के तौर पर रख लो। तारिक ने उमर साद की अंगूठी को पहन लिया। रका और मौसल की हुकूमत की लालच में जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम से जंग करने आ गए। ये मुकम्मल असलाह से मुसल्लह था। उसने पहले नेज़ा से शहजादा अली अकबर पर वार किया। शहजादे ने उसके वार को रद्द कर दिया। रद्द करते हुए अपना नेज़ा उसके सीने पर ऐसा नेज़ा मारा कि वो बालश्ते पुश्त मलऊं से बाहर निकल आया। तारिक घोड़े से जमीन पर गिरा तो शहजादे ने अपने अकाब नामी घोड़े से उसे रौंद दिया, जिससे उसके बदन के अज़ा टूट गए। फिर उसका बेटा उमर बिन तारिक आया तो वो भी उसी अंदाज से बाप से मुल्हक हो गया। फिर तारिक का दूसरा बेटा तलहा बिन तारिक अपने बाप और भाई के गम में आग के शोले की तरह जोश मारता हुआ लपका और शहजादे का गिरेबान पकड़कर अपनी तरफ खींचा ताकि आप घोड़े से गिर पड़े। लेकिन असदुल्लाह के फर्जंद का हाथ मलऊन की गर्दन में ऐसे आया कि उसकी गर्दन की रगों और हड्डियों को तोड़ दिया और ज़हन से जमीन पर दे मारा। ये देखकर लश्कर में हाय हाय की आवाजें बुलंद हो गई और शहजादे की ताकत, हैबत और शौकत के पेश नज़र लश्कर कुफर के कदम उखड़ गए। उमर साद खौफजदा हो गया और मिसरा बिन गालिब से कहा कि तुम जाओ उस हाशमी नौजवान को शिकस्त दो। मसरा मुकाबले में आया तो शहजादे ने नेज़ा से हमला किया और दादा अली अलैहिस्सलाम की तरह नारा बुलंद किया, जिससे तमाम लश्कर खौफजदा हो गया, क्योंकि हजरत अली अकबर को अपने बाबा और दादा से शुजाअत विरसे में मिली थी। मिसरा जान के खौफ से और शहजादे की हैबत से घबरा गया। शहजादे ने अपनी तलवार से उसके नेज़े को काट दिया। जब मिसरा ने तलवार उठाई और हमला करना चाहा तो शहजादे ने अल्लाह और रसूल का नाम लेकर उसके सर पर तलवार से ऐसे वार किया कि ज़हन तक चीर दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। जब दोनों टुकड़े जमीन पर गिरे तो दुश्मनों के लश्कर से हाय हाय की आवाजें बुलंद हुई। उमर बिन साद ने मुहक्किम बिन तुफैल और इब्ने नौफल को बुलाया और हर एक को 1000 सिपाही देकर शहजादे के मुकाबले के लिए रवाना कर दिया। ये दोनों सरदार 1000 का लश्कर लेकर आए और हमलावर हो गए। शहजादे ने उनका हमला भी रद्द कर दिया और फिर उन पर हमला किया और ऐसा शदीद हमला किया कि ये 2000 का लश्कर फरार होने पर मजबूर हो गया। शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने उनका ताकुब करते करते लश्कर तक जा पहुँचे। आप भूखे शेर की तरह उनको कत्ल करते रहे। इस कदर कत्ल किया कि लश्कर में शोर बुलंद हुआ और पूरे लश्कर ने हमला कर दिया। हर तरफ से मारो मारो की आवाजें आ रही थी। इसी शोरे गुल में जनाब हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी उठते और कभी बैठ जाते और फरमाते थे, अकबर तेरा बाबा तेरे जोर बाजू पर कुर्बान। लश्कर ने हर तरफ से हमला कर दिया था, लेकिन शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम के सामने जो आता वो बच कर ना जाता। उस हमले में शहजादे ने 180 मलऊनों को वासिले जहन्नम किया, लेकिन जख्म ज्यादा लग चुके थे और पूरा जिस्म जख्मी हो गया था। चुनाचे जख्मों की कसरत, प्यास की शिद्दत और जंग की हिद्दत से इस शेर खुदा के हाथों की हरकत में ज़ौफ और कमजोरी आने लगी। एक मर्तबा फिर लश्कर से निकलकर बाबा की खिदमत में आए और अर्ज किया, बाबा प्यास ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है, कुछ पानी मिलने की उम्मीद है कि पानी पीकर कुछ ताकत हासिल करूं और दुश्मनों से फिर जंग करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जवान बेटे को कोई जवाब ना दिया, अलबत्ता फरमाया, बेटा मैं शर्मिंदा हूँ कि तुझे इस हाल में पानी नहीं दे सकता। बस अपने बेटे को सीने से लगाया, अर्क आलूद चेहरे को बोसा दिया और फरमाया, मेरे जिगर गोशे, ए मेरे मेवाए दिल, मेरे दिल की ठंडक और सुकून, थोड़ा सब्र करो, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाम से सहराब करेंगे। इस बिशारत पर शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के दिल को खुशी महसूस हुई और सुकून मिला।
आप ताज़ा दम होकर फिर मैदान में आ गए और हमलावर हुए। यजीदी लश्कर ने हज़रत अली अकबर पर एक साथ हमला कर दिया, जिससे हज़रत को बहुत ज़्यादा ज़ख्म आ गए। उसके बावजूद एक कसीर गिरोह वासिल जहन्नम किया। जब प्यास की शिद्दत ने हमला किया तो फिर बाबा के पास आए और पानी मांगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने महज तसल्लियाँ दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब बेटे पर शिद्दत प्यास के असर को देखा तो फरमाया, मेरे बेटे, तेरे बाप पर ये किस कदर गिरा है कि आप उसे बुलाएं और वो जवाब ना दें। आप उनसे फरियाद करते हैं और फरियाद रसी नहीं करते। बेटा, अपनी ज़बान बाहर निकालो। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपनी खुश्क ज़बान नीम सूखता कबाब की तरह अपनी ज़बान निकाली तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली अकबर की ज़बान को अपने मुंह में रख लिया कि शायद प्यास की कमी हो जाए, लेकिन प्यास की कमी ना हुई। फिर हज़रत ने अंगूठी जनाब हज़रत अली अकबर के मुंह में रख ली, प्यास कम ना हुई। आखिरकार फरमाया, बेटा, तुम्हारे लिए अब दुनिया का पानी ख़त्म हो चुका है। अब जाओ और शाम से पहले अपने नाना से कोसर पर सहराब हो जाओ। जनाब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम मायूस हुए और मैदान की तरफ लौटे। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की जंगी कवायद के मुताबिक गरज कर हमले कर रहे थे और किश्तों की पुश्तें लगा रहे थे। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पसीना था और रुखसार मखमल के फूल की तरह सुर्ख हो गए थे। उसी दौरान में ऐसी जगह हमला करते हुए गुजरे जहां मुर्ता बिन मुनग्ज़ खेमे गाह में खड़ा था। उसी मलऊन ने जहर आलूदा तलवार ऐसे जोर से सर पर मारी कि आबरू तक जख्म हो गया। अभी इस जख्म से आसूदा नहीं हुए थे, उसी मर्ता बिन मुनख्ज़ ने आतिशें फिशा नेज़ा शहजादे के पहलू में मारा, जिससे आसमान विलायत का ये चांद ज़ैन पर संभल ना सका। शहजादे ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। जब लश्कर ने हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की ये हालत देखी तो भागते हुए करीब आ गए और शहजादे का मुहासरा कर लिया और तलवारों से आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक मलऊन ने जहर आलूदा तीर शहजादे के हलक में मारा, जिससे शहजादे की तवानाइयां खत्म हो गई। एक हाथ से ढाल और दूसरे हाथ से तलवार गिर गई। शहजादे ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी ताकि घोड़ा कयाम की तरफ ले जाए। हर तरफ से लश्कर की कसरत थी और घोड़ा कयाम का रास्ता भटक गया था। बजाय कयाम की तरफ जाने के दुश्मनों के लश्कर में चला गया। जहां से घोड़ा गुजरता हर मलऊन तलवार का वार करता, बल्कि जिस मलऊन के हाथ में जो कुछ था वो मारता। यजीदी लश्कर ने इस कदर मारा कि उन्होंने शहजादे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जूं ही जनाब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ज़ैन से ज़मीन पर आए तो बाबा को पुकारा, बाबा मेरा सलाम, मुझे नाना ने सहराब कर दिया।